यस, पहले होमवर्क बुक निकालो चलो. वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम होमवर्क बुक. सो प्रॉपरली आप क्वेश्चन नंबर पेज नंबर लिखो, वरना क्वेश्चन ढूंढते रहोगे किधर जाए. ओके, सो वेरी controversial name, Dovil LLP, with partners A, B and C are sharing profits and losses in the ratio of 10:6:4. The balance sheet of the firm as at 31st March 2022 is as under. So अभी तक जो हमने बैलेंस शीट देखा है उसमें से सबसे बड़ा बैलेंस शीट यही है. कैपिटल्स ABC, reserves which is unappropriated profit. Unappropriated means undistributed, अभी तक उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, 20,000. Then we have long term debt, we have bank overdraft and we have trade payables. Then coming on to the asset side, land, buildings, plant and machinery, furniture, ये सब fixed assets हैं. Investments, and then you have inventories and trade receivables. चलो, it was mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership and in his place Mr. D will be admitted as a partner with effect from 1st April 2022. For this purpose, the following adjustments are to be made. Goodwill is to be valued at rupees 1 lakh, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. Buildings and plant and machinery are to be depreciated by 5% and 20% respectively. Investments are to be taken over by retiring partner at rupees 15,000. Provision of 20% is to be made on trade receivables to cover doubtful debts. In the reconstituted firm, total capital will be rupees 2 lakhs, which will be contributed by Mr. A, C and D in their new profit sharing ratio, which is 2:2:1. The surplus funds, if any, will be used for repaying bank overdraft, and the retiring partner amount due to the retiring partner shall be transferred to his loan account. So you are required to prepare necessary accounts. So which are the necessary accounts that we have prepared? Number one, we have prepared the revaluation account. Then we have prepared partners कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हम लोग ने ABC पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट साथ में बनाया है, एंड डीज कैपिटल अकाउंट हमने अलग बनाया है. डी का कैपिटल अकाउंट हमने अलग क्यों बनाया है? ऑब्वियसली बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक इट कंजस्टेड हियर एंड वी हैव केप्ट इट सेपरेटली. एंड देन वी हैव प्रिपेयर्ड कैश एंड बैंक अकाउंट. वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट as on 1st April 2022, and then we have prepared calculation of ratios table. Now calculation of ratios table mein what is new is already we have 3 partners ABC, and now we are having a new admitted partner, that is D. So again one more question हम लोग solve कर रहे हैं like last question that we had solved, जिसमें एक partner retire हो रहा है and simultaneously on the same day new partner is being admitted. So पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेशियो से चालू करते हैं. बोलो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो लेट अस राइट दैट फर्स्ट. 10:6:4. दिस इज गिवन. 10:6:4 मतलब 10/20, 6/20 and 4/20. Okay, can somebody check and tell me what is the new profit sharing ratio? 2:2:1. So new profit sharing ratio is given, but now the question is 2:2:1 new profit sharing ratio is between which partners? A, C and D, because B has retired. So 2/5. C का शेयर इज ऑल्सो 2/5 एंड D का शेयर इज 1/5. आई डोंट थिंक ओल्ड शेयर को कुछ भी करना है. न्यू शेयर को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? चलो क्विकली मल्टीप्लाई. 8/20, 8/20, 4/20.
Okay, now as we see, A is going to gain or sacrifice. Okay, 2 by 20 is sacrifice of A. 6 by 20 is sacrifice of B. However, 4 by 20 is C's gain and 4 by 20 is D's gain. So C and D gain कर रहे हैं and A and B are sacrificing. चलो यहाँ तक. Let us continue. Write opening balance in partners capital account. A, C, D का opening balance, buy balance brought down 80,000, 20,000, 30,000. कैश एंड बैंक अकाउंट में जाके ओपनिंग बैलेंस लिखो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इनफैक्ट वहां पे बैलेंस नहीं है, सॉरी. सो डोंट राइट एनी बैलेंस इन कैश एंड बैंक. नहीं, ओवरड्राफ्ट का नहीं लिखना है. वो क्यों नहीं लिखना है हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमको कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. यस. सो राइट नाउ मुझे नहीं पता है कि सरप्लस फंड्स है या नहीं है. सो आई डोंट नो. सो राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके, चलो. नाउ दिस इज अवर स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में व्हाट वी डू इज वी डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स. सो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे. This reserves will be distributed between which partners? Old partners in old ratio बताया है, तो पोपट की तरह ऐसा मत बोलो. ओल्ड पार्टनर्स का नाम लो. कौन है? ABC. कौन से रेशो में? रेशो 6:4. बोलो विच अकाउंट विच साइड? सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय रिजर्व्स 10:6:4. अच्छा, अमाउंट भी वही है 10,000, 6,000 एंड 4,000. चलो लेट अस डू रिवैल्यूएशन. मुझे रिवैल्यूएशन में एक ही पॉइंट समझाना है, आगे का तुम खुद से कर सकते हो. रीड पॉइंट नंबर सी एंड रीड पॉइंट नंबर बी. उसमें मुझे बताओ इसका क्या करने का. इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है? 12,000. उसका वैल्यू कितना हो गया है? 15,000. सो हाउ मच प्रॉफिट? तो पहले ये 3,000 को आप किधर लिखोगे? तो व्हाट इज एंट्री? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. तो गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखो बाय इन्वेस्टमेंट्स. बाय इन्वेस्टमेंट्स कितना? 3,000. ओके, विल यू राइट इन्वेस्टमेंट्स इन द बैलेंस शीट? नो, इट इज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर. बोलो उसका एंट्री क्या आएगा? पार्टनर्स मतलब ऐसा सार्वजनिक सब पार्टनर्स का कौन लेके गया? तो अब रिटायरिंग पार्टनर का नाम है 20. तीसरे अटेम्प्ट में आंसर मत दो. 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. सो राइट डाउन 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. बी के कॉलम में कितना आएगा? चलो बाकी का एसेट्स का रिवैल्यूएशन करो. आई थिंक यू कैन डू इट. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना और बाद में पार्टनर्स. पहले फिक्स्ड एसेट्स का करो, बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी. डू इट योरसेल्फ. रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो फाइंड आउट करके बताओ कितना है. ओके, इट इज गिवन दैट बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड. बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. 5% of 2 lakhs is how much? 10,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 2 बिल्डिंग्स 10,000. बैलेंस शीट एसेट साइड में काम करो, लैंड भी लिख दो क्योंकि लैंड के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. लैंड करके 10,000. नेक्स्ट लाइन बिल्डिंग्स 1,90,000. देन गो बैक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 2 प्लांट एंड मशीनरी. 20% से डेप्रिशिएट करना है, मतलब 26,000. चलो जल्दी करो. Revaluation account debit side, 2 provision for doubtful debts. How much is 2 provision for doubtful debts? 27,800.
बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ट्रेड रिसीवेबल इनर कॉलम 1,39,000, नेक्स्ट लाइन माइनस PFDD, ये करना कंपलसरी है, नेक्स्ट लाइन लेस PFDD 1,39,000 माइनस 27,800, तो आउटर कॉलम में कितना है 1,11,000। ओके, सो लैंड एज इट इज 10,000 लिखना है, बिल्डिंग्स आपने लिख लिया 1,90,000, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड, प्लांट एंड मशीनरी माइनस करने के बाद कितना है 1,04,000, फर्नीचर एज इट इज लिख दो 43,000, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इन्वेंट्रीज एज इट इज लिख दो, बैलेंस शीट एसेट साइड पे 1,30,000, and just now we have completed trade receivable. What you do is come to the liability side, liability side पे leave 6 lines, और what you can do is last line total का है तो ऐसा reverse में ही लिखो, last 3 line में long term debt bank, right now don't write bank overdraft, sorry, only write long term debt 3 lakhs and trade payable 1,70,000. मैं आता हूं, चलो, इफ यू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट कितना है, लॉस आया कितना 60,800, वो 60,800 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू विच पार्टनर्स, ABC, इन विच रेशियो, हाँ तो बताओ, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो ABC का अमाउंट कितना है, सॉरी लॉस है, डेबिट साइड पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट्स बोलो क्या आएगा बताओ, 30,400, ओके, देन 18,240, ओके, देन 12,160, ओके करेक्ट। चलो, गुडविल एडजस्टमेंट, एक काम करो, वर्किंग में जाओ और मुझे ना ऐसे ही वर्किंग मतलब रफ में जाओ पीछे कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज में, मुझे गुडविल का जर्नल एंट्री पास करके दो, प्लीज रीड द क्वेश्चन। गुडविल का जर्नल एंट्री पास करके दो, हु आर गेनिंग पार्टनर्स, ओके, एंड हु आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ओके, अब मुझे जर्नल एंट्री बताओ। अरे गेनिंग पार्टनर्स, एक मिनट, हु आर गेनिंग पार्टनर्स, C&D, हु इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हाँ मुझे एंट्री चाहिए और आपको भी पास करना पड़ेगा एंट्री, बोलो क्या एंट्री हम लोग पास करेंगे, पहले आप एंट्री पास करो, बाद में अमाउंट्स डिस्कस करेंगे। C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, D इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A is capital account, 2B is capital account, ओके, अब ब्रैकेट बनाएंगे, उसके लिए पहले ना हम लोग को गुडविल का वैल्यू चाहिए, इस गुडविल का वैल्यू गिवन 1 लाख, 1 लाख में से C का गेन कितना है बोलो, C's gain is 4/20, so 1 lakh into 4/20, नेक्स्ट आएगा 1 lakh into 4/20, so C and D's gain is 4/20, likewise 1 lakh into A's sacrifice is 2/20 and B's sacrifice is 6/20। चलो ये सबका फिगर्स कैलकुलेट करो, 20,000 फॉर C and D, ओके, और A का 10,000, B का 30,000। अब मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर दो, इसको हम पोस्ट कैसे करेंगे। C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, D इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो दो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है एंड A एंड B का क्रेडिट हुआ है, तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले आप मेरे को बताओ A एंड B का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे मैं लिखूं क्या, बाय व्हाट, अच्छा बाय सीज, डोंट राइट, अगर आपने लिखा बाय सीज कैपिटल अकाउंट, तुम जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूं बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बताओ अमाउंट कितना लिखूं और किसके कॉलम में लिखूं, क्योंकि ए और बी दोनों क्रेडिट हुआ है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता। ओके, वी डोंट हैव एनी चॉइस, बट हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अमाउंट बोलो,
ए का अमाउंट, सॉरी ए का अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है, बी का अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है 30,000. सो यहां पे आएगा ए के कॉलम में डू यू एग्री 10,000 आना चाहिए, बी के अकाउंट में कितना आना चाहिए 30,000. तो यहां पे यू डोंट हैव एनी चॉइस बट यू हैव टू राइट बाय सी एंड डीज कैपिटल अकाउंट. राइट डाउन बाय सी एंड डीज कैपिटल अकाउंट, by C and D's capital account. This is how you have to do the posting. We don't have any other choice. So likewise debit side पे आप कैसे पोस्ट करोगे बोलो. टू, अच्छा अभी यहाँ पे है ना C का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है और D का कैपिटल अकाउंट अलग से नीचे है. So आपको दोनों में पोस्टिंग करके दिखाना पड़ेगा. टू A and B's कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे नीचे भी यही आएगा टू A and B's कैपिटल अकाउंट. और C के कॉलम में कितना आएगा 20,000 और नीचे D के कॉलम में कितना आएगा 20,000. चलो नाउ आई एम आस्किंग यू कि मुझे बताओ अब पूरे क्वेश्चन में ना तीन चीज बाकी है. क्या तीन चीज बाकी है? आई एम हाईलाइटिंग दैट. सबसे पहले उनको कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Second, surplus funds, if any, will be used for repaying bank overdraft. Yes, second. And third, amount due to retiring partner is transferred to his loan account. तो ये तीनों में से पहले क्या करोगे? Transfer to the loan account. So what you do is come to the partners capital account debit side. देखो अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे ही दिख रहा है ना तो मुझे और दो लाइन चाहिएगा और दो लाइन छोड़ने के बाद आप दोनों साइड का टोटलिंग करो. बी का कैपिटल अकाउंट टोटल करो एंड डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू बी's लोन अकाउंट. एक काम करो, कम टू द डेबिट साइड. डेबिट साइड यू राइट डाउन टू बी's लोन. चलो और इसके नीचे मुझे और एक लाइन चाहिए क्योंकि उधर मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखने वाला हूं. आई एम गोइंग टू क्लोज ए एंड सी's कैपिटल अकाउंट. सो टू बैलेंस कैरीड डाउन. चलो तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करके मुझे बैलेंस बताओ एंड ए एंड सी का बैलेंस ब्रॉट डाउन करो. सिर्फ आप यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खत्म करो. ओके, व्हाट इज द बैलेंस फॉर बी's लोन अकाउंट 22,760. चलो पार्टनर्स सॉरी बैलेंस शीट में जाओ. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में फर्स्ट लाइन में लिखो पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन दैट. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट लाइन में लिखो पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन दैट. नेक्स्ट लाइन ए सी डी बिकॉज नाउ ए सी डी पार्टनर्स है. उसके नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के बी's लोन, पार्टनर्स कैपिटल ए सी डी. उसके नीचे लिखो जगह जिधर भी रहेगा बी's लोन 22,760. ओके, नाउ डिड यू क्लोज ए एंड सी's कैपिटल अकाउंट. चलो ए एंड सी's कैपिटल अकाउंट क्लोज करके बैलेंस कितना है 69,600. ये ए का आया. ओके, हाउ मच फॉर सी 1840 बस. ओके 1840. कैन यू टेल मी वन थिंग, अभी तक क्या दिया होना चाहिए जो दिया नहीं है? समथिंग शुड हैव बीन गिवन बट इट इज नॉट गिवन. व्हाट इज दैट? डी विच इज इनकमिंग पार्टनर. न्यू पार्टनर आया डी, उसका कैपिटल अभी तक आपको दिया नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डी का कैपिटल? तो उसके लिए कैन यू टेल मी नाउ विच इज द नेक्स्ट एडजस्टमेंट शुड आई पिकअप? हम लोग ने रिटायरिंग पार्टनर का तो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया. बोलो अभी क्या करना चाहिए? प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट करना चाहिए. तो कैपिटल्स जो है 2 लाख रुपीज, ये 2 लाख रुपीज का कैपिटल विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए बी एंड सॉरी ए सी एंड डी. इन विच रेशियो? तो पहले 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 में. तो बोलो ए का कैपिटल कितना होना चाहिए? हाँ, सो हम लोग इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल बुलाते हैं. इफ यू रिमेंबर, प्लीज ये याद रखो क्योंकि डिसोल्यूशन चैप्टर में हमको ये चाहिएगा. प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स मतलब कैपिटल्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डेबिट साइड पे टोटल के नीचे 2 लाइन कंपलसरी छोड़ के बाद में फिर से लिखो टू बैलेंस कैरीड डाउन.
टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलो, ए के कॉलम में कितना आएगा 80,000, सी के कॉलम में कितना आएगा 80,000, एंड सिमिलरली यू कम टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसके नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, क्या प्रोपोर्शनेट कैपिटल, आई थिंक इट इज 40,000, यस, ओके। सी अभी आपको कुछ भी बोला नहीं है, अगर बोला नहीं है तो जो भी डिफरेंस है वो आप किस में सेटल करोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ए का प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज 80,000, सिंपल लैंग्वेज में ए का कैपिटल फर्म में होना चाहिए 80,000, बट राइट नाउ उसका कैपिटल कितना है, हाँ, तो डिफरेंस इज एक्सेस कैपिटल के डेफिसिट कैपिटल, डेफिसिट, इनफैक्ट सी का भी डेफिसिट कैपिटल है, तो दोनों कैपिटल्स डेफिसिट है। इसके नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में आपको लिखना है प्रोपोर्शनेट, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग मोर नंबर ऑफ लाइंस इन कैपिटल अकाउंट, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ये एक्चुअल कैपिटल्स है, डिफरेंस हम लोग बैंक में या कैश और बैंक लिखेंगे, कैश एंड बैंक, ये क्वेश्चन में कैश एंड बैंक, चलो फाइंड आउट द डिफरेंस, बताओ हाउ मच इज डिफरेंस इन केस ऑफ ए, 10,400, इतना पैसा ए लेके आएगा, एंड हाउ मच इज डिफरेंस इन केस ऑफ सी, 78,160। नाउ आई वांट टू आस्क सिंपल क्वेश्चन, डी में आप लोग को क्लियरली दिख रहा है डेबिट साइड इज 60,000, मतलब कैन यू टेल मी डी पैसा कितना लेके आया रहेगा 60,000, सो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 60,000, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 60,000, ओके। सो नाउ कम टू कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक सब पार्टनर्स लेके आ रहे हैं पैसा, तो ए 10,400 लेके आ रहा है, सी 78,160 लेके आ रहा है, और डी 60,000 लेके आ रहा है। सो कम टू कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड, राइट डाउन टू ए's capital account, to A's capital account 10,400, to C's capital account 78,160, and to D's capital account 60,000. कैश एंड बैंक अकाउंट में ए ने पैसा ले आया, सी ऑल्सो ब्रिंग्स मनी, बिकॉज दीज आर डेफिसिट कैपिटल्स, ये डेफिसिट है, तो जो भी डेफिसिट है वो ए और सी लेके आ रहा है, एंड डी तो नया पार्टनर है, तो ही इज ब्रिंगिंग 60,000। ओके, कोई बताएगा अभी बैंक में मेरे पास टोटल पैसा कितना हो गया? हाँ, तो डू यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे बैंक ओवरड्राफ्ट? यस। सो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम बैलेंस शीट में बताएंगे कि हम लोग उसको पे ऑफ कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं। सो अगर हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो कैश और बैंक के क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना आएगा? 44,000। ओके, कम टू पार्टनर्स, सॉरी बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी यू हैव रिटन फर्स्ट लाइन पार्टनर्स कैपिटल, ए सी डी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स कितना है? सो ए का 80,000, ए का 80,000 है, सी का ऑल्सो 80,000 एंड डी का 40,000। ये सबका टोटल आउटर कॉलम में जाएगा 2 lakhs। एंड नाउ क्लोज कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट में भी क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करो, टेक दैट टू द बैलेंस शीट। चलो, इज योर बैलेंस शीट टेलिंग? बैलेंस शीट कितने पे टैली हो रहा है? 692, 750, 760, 60। ओके, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कैश एंड बैंक का 104,560, 1,04,560। चलो, डिड यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन?
टेक क्वेश्चन नंबर 4, क्लास वर्क बुक में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 258 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन योर होमवर्क बुक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 4 इनफैक्ट इट इज द बेटर क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. जो होमवर्क बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इज अ वेरी सिमिलर वर्जन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो हम क्वेश्चन 4 करेंगे. आप लोग होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 डू इट वेरी केयरफुली. एक मिनट बिफोर आई प्रोसीड, एडमिशन ऑफ पार्टनर का सब होमवर्क किया है तुमने? नहीं किया है. एक मिनट, उसके भी पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का सब होमवर्क क्या? उसका सॉल्यूशंस मैंने भेजा था, तुमने वेरीफाई किया. गुडविल चैप्टर का होमवर्क क्या है? नहीं किया है. ओके, सो गुडविल चैप्टर और कौन सा एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड आज हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो रहा है, तो तुम क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क है. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो लोगों ने नहीं किया है, फुल चैप्टर कितने क्वेश्चन से जरा देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में होमवर्क बुक में. तो मेरे पास भी है, मैं भी आ जाता हूं. तो अच्छा खासा तुम्हारे पास काम मिल गया है अभी तुमको. नहीं वैकेशन नहीं, अभी नेक्स्ट लेक्चर है ना हमारा ट्यूसडे को, तभी बताना है. वैकेशन तो बहुत टाइम है, 1 मई को है, उसके लिए अलग होमवर्क मिलेगा. तुमको होमवर्क ही चाहिए ना, तो वो हमको मिलेगा. अब मैं नहीं एक्चुअली इट इज माय मिस्टेक. मैं क्या करता हूँ, एवरी लेक्चर होमवर्क चेक नहीं करता हूँ, तो अब हम होमवर्क एवरी लेक्चर चेक करेंगे. अब बिकॉज यू आर बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल डे बाय डे. मैंने बीच में एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, वो बहुत जन भूल गए हैं. हाँ, तो होमवर्क ये क्या है, 5 ही तो क्वेश्चन है गुडविल में, तो 5 क्वेश्चन गुडविल का, एडमिशन ऑफ पार्टनर का बस 6 क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का है, और 6 क्वेश्चन रिटायरमेंट का. 6 क्वेश्चन रिटायरमेंट में से 1 क्वेश्चन तो हमने आज कर दिया, तो 5 क्वेश्चन रिटायरमेंट. 6 + 6 12 + 5 17 क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे होमवर्क है. और तो क्या है, पूरा संडे तुम्हारा कल, तो बैठ के पूरा दिन होमवर्क करो. एक मिनट एक्सक्यूज मी, एक मिनट मैं बात करूं. कौन सा एग्जाम है? कल है ना वो? हाँ, तो कल कितना बजे एग्जाम है? अच्छा, हम ये सिचुएशन में किसकी वजह से हैं? तुम्हारी वजह से हैं. मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर तो कब का खत्म हो गया था, 2 हफ्ते पहले. तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था. 12 क्वेश्चन डेफिनेटली, मेरा लेक्चर 12 दिन के बाद था, तो तुम दिन का 1 क्वेश्चन सॉल्व करते तो भी तुम्हारा हो जाता. अब ये जो तुमने पाप किया है वो तुम एक साथ भुगतोगे. अच्छा ठीक है, तो तुमको अभी क्या वो समर ब्रेक आ रहा है, तब का टाइम चाहिए तुमको. तो तुम बाद में वापस 9th को यही मुंह लेके आ जाओगे, हम बाहर घूमने गए थे, समर ब्रेक था, उसमें थोड़ी हम पढ़ाई करेंगे, हमने छुट्टी था हमको उसमें. तो ठीक है, कल कितना बजे एग्जाम है? कल सुबह 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, आज रात को जागो, सब होमवर्क करो. मैं भी रात सुबह सुबह जाग के तुम्हारा होमवर्क का बुक का सोल्यूशन बना रहा हूँ. मैं भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तक पहुंचा हूँ. मैंने तो चैप्टर 1 से चालू किया होमवर्क का सोल्यूशन बनाने का, तो अब तक तो मेरा रिटायरमेंट 20 चैप्टर में से कितना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, 12-13 चैप्टर्स हो चुका है, और अभी आगे बता दूंगा. ठीक है, ठीक है, चलो उल्टा करते हैं. तुम मुझे बताओ तुम कब करके लेके आओगे नेक्स्ट लेक्चर जो ट्यूसडे को, उसमें क्या करके लेके आओगे वो बताओ पहले. गुडविल एंड एडमिशन, ऐसा मत बोलो, नहीं तो तुम बोलेंगे एडमिशन, मत बोलेंगे हमने आपको सिर्फ एडमिशन ही बोला था. अच्छा, फर्स्ट चैप्टर का सबका हो चुका है? ऐसा कोई इंसान बैठा है जिसने फर्स्ट चैप्टर का अभी तक नहीं किया है? फर्स्ट चैप्टर मतलब विपुल सर ने पढ़ाया वो फर्स्ट चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप सबका हो गया. हाँ, तेरा बाकी है वो मुझे पता है. ठीक है, तो तू तो वो भी करके आएगा. हाँ, तेरे पास वीडियोस है फर्स्ट चैप्टर का, हाँ, तो वो देखने का, होमवर्क करने का. तू तो क्लास वर्क भी करके लेके आएगा. हाँ, वो करके लेगा, उस मेरे को ऐसा लग रहा है. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किसका किसका बाकी है? चलो हाथ ऊपर करो. सच में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अरे आधा के पूरा किसका बाकी है? सब ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट. सो ओके, ये दिशाहीन बोट को अब मुझे दिशा देनी पड़ेगी. सो विदाउट डायरेक्शन बोट को हम डायरेक्शन देंगे. तो वैल्यूएशन मतलब ये ट्यूसडे को आप कौन सा चैप्टर करके लेके आओगे? गुडविल एंड एडमिशन. अच्छा ठीक,
बस 12 ही तो सम है, 12 ही सम। एक मिनट, मैंने ना सॉल्यूशन भेजा है, किसी ने भी सॉल्यूशन कॉपी करके लेके आया ना तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने कॉपी किया। सॉल्यूशन भेज दिया है? अच्छा नहीं भेजा है तो मैं वैसे भी भेजने वाला हूँ। मेरा अभी रिटायरमेंट तक हो गया और पूरा एक साथ 150 पेज का सॉल्यूशन का बुकलेट आएगा। बुकलेट मतलब पीडीएफ आएगा, प्रिंट करके कोई नहीं भेजने वाला है तुमको। हाँ तुमको चाहिए तो तुम प्रिंट आउट निकलवा सकते हो 150 पेज का। नहीं, इतने में इतना ही मिलता है तो हाँ, तो ये आप निकलवा सकते हो। तो देख लेना, सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग, तो जस्ट गिव मी 2 डेज, उसमें बाकी का चैप्टर एक साथ बन जाएगा। तो वो पीडीएफ संभाल के रखना, बाद में ऐसा नहीं बोलना कि नहीं मिला है, ठीक है। और फिर बाद में रिटायरमेंट का सम्स कब करके आओगे? वेकेशन के बाद। ओके, वेकेशन के बाद, ठीक है। राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे विल बी इंप्लीमेंटेड इन अदर क्वेश्चंस एंड अदर चैप्टर्स ऑल्सो। ओके चलो, प्लीज, स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन। सो हमको ये क्वेश्चन 4 एंड 5 दोनों खत्म करना है। क्वेश्चन 4 एंड 5 दोनों क्वेश्चन खत्म करना है। पहले 4 चालू करते हैं। 5 का साइज तो देखो बेचारे का, कहां गया 5, दिखता भी नहीं है बीच में कभी कभी। ये रहा देखो, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज रीड द क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी, मतलब तुम मन में पढ़ो, मैं जोर से पढ़ रहा हूं। A, B and C were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The balance sheet of the firm as on 31st March 2022 was as under. So liabilities side पे capital accounts of partners A, B, C, sundry creditors 40,000. Asset side पे you have fixtures, stock, sundry debtors, cash. Partner A, on account of ill health, gave notice that he wished to retire from the firm. શું જોઈએ છે તમે? અરે હું આ કઈ ન્યૂઝ थोड़ी વાંચું છું, रेलवे अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं कि ये गाड़ी ये प्लेटफॉर्म पे आएगी। प्लीज, मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आज ही सुबह को मैं पढ़ा के आया हूं एक बैच में। चलो, a retirement agreement was therefore entered as on 31st March 2022, the terms of which were as follows. Profit and loss account for the year ended 31st March 2022, which showed net profit of rupees 42,000 was to be reopened. B was to be credited with 6,000 as bonus in consideration of extra work which had devolved upon him during the year. The profit sharing basis was to be revised and the revised ratio is to be 2:3:1 as and from 1st April 2021. Point number B, goodwill was to be valued at 2 years purchase of the simple average profits of 5 years. Profits for these 5 years ending on 31st March were as under. So 31st March 2018, 15,000, 31st March 2019, 23,000, 31st March 2020, 25,000, 21, 35,000 and 31st March 2022, 42,000. Fixtures are to be valued at rupees 39,800 and a provision was to be made for doubtful debts. And remaining assets were to be taken at their book values. Amount payable to A and B, amount payable to A shall be paid by B. B and C agreed as between themselves to continue the business, sharing profits and losses in the ratio of 3:1. And decided to retain fixtures in the books at the revised value and to increase the provision for doubtful debts to 6%. और इतना काफी नहीं था तो लास्ट में लोग ने लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी रुपीज 3 लाख एज बिफोर टू बी मेंटेन्ड इन द न्यू रेशियो एज बिटवीन बी एंड सी.
You are required to prepare necessary accounts and balance sheet of the firm after retirement, after giving effect to the above arrangements on the retirement of A. Easily अगर ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं, not less than 12 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए. ओके, नाउ सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन को प्रॉपरली देखोगे तो व्हाट इज द न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन? What is the new point in this question? So listen very carefully. First of all, ये question को मैं 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा. In fact, I will solve this question in 3 parts. ऐसा हम और एक क्वेश्चन आगे जाके करेंगे. We will do such question in retirement only. हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसोल्यूशन में भी ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे. So ऐसा 3-4 क्वेश्चन हम आगे जाके सॉल्व करने वाले हैं. So right now टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको ये पहले जो बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ यू सी स्टार्टिंग में बैलेंस शीट जैसे नॉर्मली आपको रिटायरमेंट के क्वेश्चन में देते हैं वैसे आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, लेकिन नीचे का पार्ट अगर आप देखोगे तो आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स. टिल हियर आई एम कॉलिंग इट एज पार्ट 1. टिल हियर मतलब पॉइंट नंबर ए, इसको मैं बुला रहा हूं पार्ट नंबर 1. देन B, C and D. B, C and D को I will call it as part number 2. And then D के नीचे जो 4 लाइन का पैराग्राफ दिया हुआ है, whatever 4 lines are given, I will call this as part number 3. So this question has been divided into 3 parts. So if you ask me how to define this part 1, part 2 and part 3. So part number 1 is, I can call it as before retirement. I repeat it, I can call it as before retirement. Second part, I can say at the time of retirement of A. And third part को हम बोल सकते हैं after retirement of A. मतलब A के रिटायर होने के बाद B and C ने अपने बीच में क्या एग्री किया है वो आपको सेपरेटली दिया हुआ है. नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद क्या होने वाला है वो हमको नहीं देते हैं. सो राइट नाउ आपको आगे बी एंड सी ने क्या एग्री किया है वो भी आपको दिया हुआ है. सो नीडलेस टू से वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व पार्ट 1. नाउ पार्ट 1 क्या है? व्हाट इज पार्ट 1? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली व्हाट इज पार्ट 1. इनफैक्ट आप समझ लो क्वेश्चन यहां तक ही है, मतलब क्वेश्चन ए पार्ट पे एंड होता है, उसके नीचे बी पार्ट और सेकंड पार्ट वो समय ना आगे का जाने दो. सपोज मेरे लिए क्वेश्चन इतना ही है, आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे आपको पॉइंट नंबर ए दिया हुआ है. सो इफ यू सी द बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दे हैव गिवन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स ए, बी एंड सी एंड दे हैव गिवन सन्ड्री क्रेडिटर्स. अब नीचे आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. इफ यू सी द बैलेंस शीट इज ऑल्सो ऑन द सेम डेट, दैट इज 31st March 2022. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 showed a net profit of ₹42,000. नाउ मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज थिंक एंड आंसर. सबसे पहले ये 42,000 कौन से अकाउंट से आया है वो दिया है आपको. 42,000 का प्रॉफिट हैज कम फ्रॉम विच अकाउंट? ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट? 31st March 2022. So 31st March 2022 is the date of retirement. मतलब we are talking about which year? We are talking about financial year 2021-22. ये 21-22 का फाइनल अकाउंट्स कौन से डेट को बना रहेगा? पार्टनरशिप फर्म में 21-22 फाइनल अकाउंट्स was or must have been prepared on which date? 31st March 2022. अच्छा, फाइनल अकाउंट्स में ये लोग ने सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट. बाद में कौन सा अकाउंट बना रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस. वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनको प्रॉफिट कितना मिला है? 42,000. उसके बाद हम लोग ने पार्टनरशिप में इन सीए फाउंडेशन वी हैव स्टडीड इन पार्टनरशिप का वेरी फर्स्ट चैप्टर, वी प्रिपेयर वन एक्स्ट्रा अकाउंट, वी प्रिपेयर वन मोर अकाउंट विच इज कॉल्ड एज विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इट इज नॉट लाइक 12th स्टैंडर्ड जिसमें आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाते थे. 12th स्टैंडर्ड में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे और पार्टनर्स को आप पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. लेकिन हम लोग ने फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर हम लोग ने पढ़ा कि देयर इज वन एक्स्ट्रा अकाउंट और वन मोर अकाउंट दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट विल कम फ्रॉम पीएनएल अकाउंट. डू यू एग्री विद दिस? तो यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट. बाय नेट प्रॉफिट 42,000. This 42,000 का profit has come from which account? Profit and loss account. Now I want to ask you one question and think and answer. Is this 42,000 का profit already distributed amongst the partners or not? सोच के आंसर देना प्लीज. क्या ये 42,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है? यू हैव टू थिंक एंड आंसर. तेरे आंसर में मुझे आंसर नहीं क्वेश्चन सुनाई दिया. हो चुका है. हाँ, आपको कैसे पता चला कि 42,000 का प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? नहीं, रीओपन करने के लिए क्यों बोला है वो बाद में देखते हैं. माय क्वेश्चन इज व्हाई, हाउ डिड यू कम टू नो दिस 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स? यू आर सेइंग बैलेंस शीट बन चुका है. तो बैलेंस शीट बन चुका है, उससे कैसे पता चलता है कि 42,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? बैलेंस शीट. अगर ये 42,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ रहता तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस करके दिखेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. यस और नो? और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो माय क्वेश्चन इज हाउ डिड द बैलेंस शीट टैली विदाउट दैट? क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो लायबिलिटी साइड पे पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए, जो दिख नहीं रहा है. और अगर वो नहीं दिख रहा है तो बैलेंस शीट टैली कैसे हुआ? यस और नो? ओके, चलो. कैन यू टेल मी, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा? मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा 42,000? एंड माय क्वेश्चन इज दिस मस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड रादर इन विच रेशियो? 3:2:1. तो बोलो, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू विच अकाउंट? यस, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. To partners capital account. This is distributed to A, B and C in the ratio. Okay, चलो डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आता है? 21,000, 14,000, 7,000. This is how this profit of 42,000 has been distributed. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है, क्लोज हो चुका है एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे ले रहा हूं एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एग्री कि दिस मस्ट हैव गॉन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड पे इट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ए बी सी के कॉलम में आया रहेगा 21,000, 14,000 and 7,000 and they must have closed partners capital account and they must have got balances in partners capital account. यही balances आए रहेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है which is 1,50,000, 1,50,000. तो ए का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना आया रहेगा? 1,50,000, 1,50,000. ये हमको करना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है एंड ये टू बैलेंस कैरिड डाउन जो लिखा है ना 1,50,000, 1,50,000, ये करके ये लोग ने ये बैलेंस शीट बनाया है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस दिख रहे हैं. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. टिल हियर एवरीबॉडी फॉलोड? आई थिंक सो. ओके, नाउ कैन यू टेल मी ए पॉइंट पढ़ के हाउ मेनी एरर्स आर कमिटेड? ए पॉइंट पढ़ के पढ़ो और पढ़ के बताओ रादर हाउ मेनी एरर्स आर कमिटेड.
मतलब ओके चलो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, क्या ये जो उन्होंने किया है, बिकॉज राइट नाउ यू आर कन्विंस्ड कि ये हो चुका है, क्या ये जो किया गया है इज इट करेक्ट और नॉट? नो. व्हाई नो? व्हाट आर द एरर्स दैट आर कमिटेड? चलो आई हैव पुट द क्वेश्चन अदर वे कि व्हाट आर द एरर्स दैट आर कमिटेड? यू आर सेइंग नो, ये जो किया है वो सही नहीं किया है. तो अगर ये जो किया है वो सही नहीं किया है तो क्यों? व्हाट इज द मिस्टेक दैट दे हैव डन? Yes, there is one partner whose name is B is entitled to 6,000 रुपीज का बोनस. ये उसको नहीं दिया है. सी क्या हो रहा है मालूम है? अचानक 31 मार्च 2022 को ए बोल रहा है मेरा अब तबीयत खराब हो चुका है, आई कैन नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर, सो आई वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. तो बी ने बोला ओके यू रिटायर फ्रॉम द फर्म. तो ए और बी के बीच में कुछ बात हुआ या ए और बी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, आई डोंट नो, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्योंकि अभी तक पार्टनर्स कौन से रेशियो में शेयर कर रहे थे? तो सडनली बी बोलता है कि 3:2:1 ही गलत है, रेशियो शुड हैव बीन 2:3:1. तो ए को बोलता है तुझे अभी से नहीं, तुझे तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से बीमारी है. क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी रिवाइज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. 1 अप्रैल 2021 से ही रेशियो 2:3:1 होना चाहिए था. तो तू तो अभी बीमार नहीं हुआ है, तू तो पहले से बीमार हुआ है और उसकी वजह से मेरे पे वर्कलोड बढ़ गया है. ये कौन बोल रहा है? ए और बी के बीच में डिस्कशन है. सी चुपचाप बैठा है क्योंकि सी को पहले भी 1/6 मिल रहा था, अभी भी उसका शेयर 1/6 ही है. तो सी ने सोचा शांत रहने में ही समझदारी है. तो बोलेगा ये लोग को करने दे जो करना है, अपने को तो वैसे भी 1/6 ही मिलने वाला है. तो बी क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो ये 2:3:1 ये रेशियो शुड बी चेंज्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज 1/4/2021. अच्छा वो छोड़ो, पहले मेरे को 6,000 का बोनस दो क्योंकि तुमने मेरे पास से एक्स्ट्रा काम करवाया इस साल में. तो सबसे पहले ये जो 42,000 का प्रॉफिट तुमने सब में बांट दिया है ना, वो गलत किया है. तो वो गलत किया है तो पहले मेरे को 6,000 का बोनस दो, बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो भी जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो. तो दिस इज व्हाट first thing that we have to do. See, because of these two errors, how many errors have been committed? Two. Which two errors have been committed? Number one, bonus to B, and second, profit should have been distributed in the ratio of 2:3:1. ये दो एरर के वजह से आपका बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस है ना, द बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल आर रॉन्ग. और ये पॉइंट पार्टनरशिप में हमेशा याद रखो. सी पार्टनरशिप में आई विल नेम द चैप्टर्स. वी हैव डन चैप्टर गुडविल. गुडविल के बाद वी हैव डन एडमिशन ऑफ पार्टनर. राइट नाउ वी आर डूइंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. उसके बाद वी विल डू डेथ ऑफ द पार्टनर. उसके बाद वी विल डू डिसोल्यूशन. हमेशा याद रखो कि like for example previous chapter that we have completed it, admission of partner. Right now we are doing retirement of partner. We are doing steps. एडमिशन ऑफ पार्टनर पे हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं, डिसोल्यूशन में भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे. लेकिन ये स्टेप्स फॉलो आप कब कर सकते हो? जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर्स नहीं है. आपका बैलेंस शीट करेक्ट होना चाहिए. अगर आपका बेस बैलेंस शीट ही गलत है तो तब तक आप स्टेप्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन फॉलो ही नहीं कर सकते. अच्छा आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल. हम लोग ने गुडविल चैप्टर भी किया हुआ है. गुडविल में ऐसे किए हुए हैं हम लोग ने सम्स. व्हेनेवर हमको सम्स में एफएमपी कैलकुलेट करना होता है तो एफएमपी में हमको पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए रहते हैं, लेकिन पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में आप एफएमपी तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते हो जब तक उसमें एरर्स हो. तो हम क्या करते हैं? हम एरर्स को पहले रेक्टिफाई करते हैं. हम पहले प्रॉफिट्स को करेक्ट करते हैं कि नहीं भाई देयर आर सर्टन एरर्स इन पास्ट ईयर का प्रॉफिट्स. जब तक आप वो एरर्स को रेक्टिफाई नहीं करोगे तब तक आप किसी का भी स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकते. व्हाट आर अवर स्टेप्स फॉर रिटायरमेंट? चलो एडमिशन और सब तो जाने दो. रिटायरमेंट का स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 कि आपको कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज करना है. राइट द ओपनिंग बैलेंसेस.
Step number 2 is distribute reserves and accumulated losses. Step number 3 revaluation. ये सब आप चालू ही नहीं कर सकते हो जब तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर्स हैं. These balances of capital accounts are incorrect because this 42,000 का प्रॉफिट is incorrectly distributed. पहले तो 42,000 बटना ही नहीं चाहिए. तो अब मुझे ना ये एरर को पहले मेरे को ना मेरा बैलेंस शीट रेक्टिफाई करना पड़ेगा. आई हैव टू रेक्टिफाई द बैलेंस शीट. एंड ऐसे हमारे पास नहीं तो 2 से 3 से 4 प्रॉब्लम है. तो हमेशा याद रखो, कभी भी पार्टनरशिप का सम चालू करेंगे तो सबसे पहले अगर आपको एरर दिए हैं तो सबसे पहले आप एरर रेक्टिफिकेशन करोगे. उसके बाद जो भी चैप्टर है, एडमिशन है तो एडमिशन के स्टेप्स फॉलो करो. उसके बाद जो रिटायरमेंट तो रिटायरमेंट के स्टेप्स फॉलो. सो राइट नाउ तो मैं एडमिशन रिटायरमेंट का तो राइट नाउ तो मैं जो चैप्टर में है उसके स्टेप्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं. अगर मैं ये क्वेश्चन को यहां तक कंप्लीट करूं ना तो ये रिटायरमेंट का सम ही नहीं है. दिस इज चैप्टर नंबर 10A का सम, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. ठीक है, चलो ना अब मुझे इसको रेक्टिफाई करना है. तो सबसे पहले आप क्या करो, गो टू योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फॉर्मेट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ. एक मिनट, विल यू डू कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज राइट नाउ? नो, हम लोग रिटायरमेंट कर ही नहीं रहे हैं. रिटायरमेंट के स्टेप्स सोचना भी नहीं फॉलो करने का. राइट नाउ यू कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट यू राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस इज 1,50,000. बी के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस इज 1 लाख. एंड सी के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस इज 50,000. ओके, वंस अगेन आई एम आस्किंग यू, क्या ये कैपिटल के बैलेंसेस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं? दिस आर नॉट करेक्ट बैलेंसेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ये 42,000 ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, रादर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. कैन यू टेल मी, जब ये 42,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट वाज पास्ड? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू partners capital. Profit and loss appropriation account debit to A's capital account, to B's capital account and to C's capital account. Each पार्टनर को हमने इसके लिए क्रेडिट किया हुआ है. तो अब ये जो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट गलत है. तो अब मैं क्या एंट्री पास करूंगा, बोलो? कैन आई से आई विल हैव टू रिवर्स दिस एंट्री? रिवर्स दिस एंट्री तो बोलो, डेबिट किसको किसको करोगे? ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो व्हाट इज अ जर्नल एंट्री, बोलो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? सपोज इसी क्वेश्चन में आपको बोलते हैं पास जर्नल एंट्री, तो पहला क्या एंट्री पास करोगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट. अमाउंट बोलो कितना? 21,000. बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट बोलो 14,000. सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 7,000. ये तो डेबिट हो गया. टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप नहीं लिख सकते, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो साल का क्लोज हो चुका है. आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो साल का क्लोज हो चुका है. ये आप पढ़ोगे व्हेन यू गो टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर. आई थिंक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर आपका चालू नहीं हुआ है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जब आप चैप्टर चालू करोगे उसमें आपको समझाया जाएगा कि जब आप सब्सिक्वेंट ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन करते हो तो एक अकाउंट ओपन होता है. उस अकाउंट का नाम इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो इन सिंपल लैंग्वेज में आपको यह बोलना चाहता हूं कि आप टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिख सकते. क्यों आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिख सकते? तो इसका मैं आपको सिंपल रीजन देना चाहता हूं. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2022 को अकाउंट क्लोज हो चुका है. तो आप वो अकाउंट को फिर से ओपन नहीं करोगे. तो उसके लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो बोलो फिर से, जर्नल एंट्री क्या पास किया तुमने? ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है. कम टू पेज नंबर 259.
Come to profit and loss adjustment account. Write down on the credit side. By partners capital account. Underline that. Next line ABC. 21,000, 14,000, 7,000. तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं, तुझे मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो करना तो पड़ेगा ही, आपको बताना तो पड़ेगा ही। देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे पास फिर से वही जवाब है, तुझे मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो रियल लाइफ में ही करना है, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ में नहीं करना है। चलो आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे जस्ट मेंशन करो ब्रैकेट में 3:2:1। ये तीनों का टोटल 42,000 विल गो इन द आउटर कॉलम। ये तीनों का टोटल इज 42,000। चलो इसका सेकेंड इफेक्ट दे दो। Partners capital account debit side, it is okay if you use two lines. To profit and loss adjustment account. To profit and loss adjustment account. Okay, so we have 21,000, we have 14,000 and we have 7,000. Okay, now listen, ये जो हमने किया है इसमें हमने क्या किया है, जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ना ऑलरेडी, उसको हम लोग ने रिवर्स कर दिया है। सो वी हैव नलिफाइड व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। बरोबर है। अब जो करेक्ट है वो भी तो करना पड़ेगा। तो करेक्ट है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? Can I directly redistribute this 42,000 in 2:3:1 now? No, पहले इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? बोनस। किसको बोनस देना पड़ेगा? बी को। एंट्री बोलो। Profit and loss adjustment account debit. Can we say bonus to partner is one of an appropriation? It is an appropriation, no? So can you tell me what is the entry that we will pass for giving bonus to, or we have to give bonus to B? बोलो एंट्री क्या आएगा? Profit and loss adjustment account debit. Correct. To B's capital account. एंट्री भूलने के लिए बोलता हूं तो एंट्री बनाते हो तुम। To B's capital account 6,000. This will be posted to B's capital account, मतलब partners capital account credit side. अगेन इसमें आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज ओके इफ इट इज गोइंग इन टू लाइन्स। बी के कॉलम में 6,000। चलो नाउ कम टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब कैन यू लुक एट द क्रेडिट एंड डेबिट एंड टेल मी डिफरेंस कितना आएगा? 36. दैट 36,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ABC. नाउ इन विच रेशियो? So write down 2. Partners capital account. Underline that. Next line ABC. And which will be in the ratio of 2:3:1. This is 36,000. Are you getting 12,000, 18,000, 6,000? Chalo, this will go to partners capital account. Which side? This will go to partners capital account. Which side? Credit side. लिखो partners capital account credit side में बाय
प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, तीनों में लिखो। और मुझे ना पार्टनर्स कैपिटल में इमीडिएटली यहां पे डोंट लीव एनी लाइंस, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस फाइंड आउट करके दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट 12,000 18,000 6,000. Okay, tell me what are the balances after doing all these adjustments? 1,41,000, 1,10,000. वापस हो गया, बंद हो गया, तो मैं आऊं वापस। 40, हाँ एक मिनट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,41,000, 1,10,000, 49,000। एक मिनट रुको अभी। विच इज, ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंसेस हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू। अब आप देखो, कैन यू टेल मी ए का कैपिटल अकाउंट में लेटेस्ट बैलेंस कितना है? हाउ मच इज लेटेस्ट बैलेंस इन एज कैपिटल अकाउंट? 1,41,000। बी के कैपिटल अकाउंट में लेटेस्ट बैलेंस कितना है? 1,10,000। एंड सी के कैपिटल अकाउंट में लेटेस्ट बैलेंस कितना है? 49,000। इफ यू total this three, 1,41,000, 1,10,000 and 49,000, you will still get rupees how much? 3 lakhs. तो सी एक्चुअली अगर आप प्रॉपरली सोचोगे, पहले भी 42,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अभी भी 42,000 ही हुआ है, बट तरीका अलग है। पहले हमने 42,000 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन वो 42,000 को हम लोग ने रिवर्स कर दिया, उसके बाद वापस से 42,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन उसमें से पहले 6,000 बी को दिया एंड देन 36,000 ए बी सी को दिया। सो एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज ओनली देयर कैपिटल बैलेंसेस हैव चेंज्ड, बट दिस इज नेसेसरी, दिस इज नेसेसरी। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि अगर ए रिटायर हो रहा है तो ए का जो अमाउंट लास्ट में आएगा वो गलत हो जाएगा। So we have to rectify the balances. Always remember, you have to do rectification of error first. आपको पहले एरर रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उसी के बाद आप रिटायरमेंट का स्टेप्स चालू कर सकते हो। अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यू हैव बी, सी एंड डी। तो ये बी, सी एंड डी इज नाउ रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ए। पार्टनर ए हैज डिसाइडेड टू रिटायर, तो अब हम रिटायरमेंट का स्टेप्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के स्टेप्स में सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। कम टू कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज का टेबल। ओके, नाउ सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज के टेबल में ओल्ड शेयर में कितना लिखोगे आप? ओल्ड शेयर में 2 ओल्ड रेशियो है, एक है ओल्ड रेशियो एंड एक है न्यू ओल्ड रेशियो। तो हम नाम रखेंगे ओल्ड रेशियो एंड रिवाइज्ड ओल्ड रेशियो। व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 3:2:1। व्हाट इज रिवाइज्ड ओल्ड रेशियो? हाँ, 2:3:1। तो दोनों में से यहां पे कौन सा लेने का? यस, राइट डाउन 2:3:1। इसके ब्रैकेट में लिखो गिवन, सॉरी नो, अभी हम गुडविल कैलकुलेशन करेंगे। अरे अभी आप गुडविल वैल्यूएशन करोगे तो यही रेशो में होएगा ना, 2:3, इसी में तो हम करेंगे। नो, आई डोंट थिंक सो। लास्ट ईयर क्यों है? तो अभी 31 मार्च को ही चेंज हो रहा है, तो यही डेट पे हम लोग सब चेंज कर रहे हैं। हम लोग ने चेंज अगर 1 अप्रैल को किया रहता तो तभी कैलकुलेशन करना चाहिए था। हाँ, पर तभी का अपने पास नहीं है ना डेटा, तभी का क्यों करना है? तो यहाँ पे जब एडमिशन रिटायरमेंट हो रहा है तब हम कर ही तो रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम कर रहे हैं,
अच्छा, चेंज कब कर रहे हैं? और आई कैन लेट मी पुट इट दिस वे, आप चेंज रेशियो चेंज कर कब रहे हो? ओके, ऑन विच डेट यू आर चेंजिंग? बराबर है। तो ये डेट पे दो चीज हो रहा है, रेशियो भी चेंज हो रहा है और रिटायरमेंट भी हो रहा है। तो रेशियो चेंज हो रहा है और रिटायरमेंट हो रहा है, तो दोनों के पर्पस के लिए आप गुडविल का एडजस्टमेंट एक साथ में ही हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग करने का जरूरत नहीं है मुझे। ये डेट पे रेशियो भी चेंज हो रहा है और ये डेट पे रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो उसके साथ गुडविल का एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। ओके, कैन यू टेल मी यहां पे 2:3:1 मतलब 2/6, 3/6 एंड 1/6। ओके, कैन यू टेल मी न्यू शेयर कितना है बिटवीन बी एंड सी? ओके, बोलो एलसीएम क्या आएगा? 12, 4/12, 6/12 एंड 2/12, और यहां पे आएगा 9/12, 3/12। ओके, चलो कंप्लीट दिस टेबल। ऑब्वियसली ए इज सैक्रिफाइसिंग 4/12, B is gaining 3/12 and even C is gaining, so that is 1/12. So gain ratio आप बोल सकते हो is 3:1. Now we have actually started following retirement of partner का steps. तो उसके steps में पहले आता है calculation of ratios जो हमने किया। नेक्स्ट स्टेप आता है राइट ओपनिंग बैलेंसेस। ऑलरेडी वी हैव रिटन ओपनिंग बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल, वी हैव ब्रॉट डाउन द बैलेंस। उसी के नीचे यू कैन सी समवेयर, इनफैक्ट उसी के ऊपर यू कैन सी कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हमको ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट में यू कैन सी द बैलेंस इज 50,000, सो उसमें आके लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ये ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख लिया है। Now we are writing cash account में balance, to balance brought down 50,000. Okay, now ये स्टेज पे if there was any reserve तो हम ये स्टेज पे डिस्ट्रीब्यूट करते। ये स्टेज पे हमको अगर रिजर्व्स रहेगा या अक्यूमुलेटेड लॉसेस रहेगा तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यू कैन सी देयर इज नो रिजर्व एंड देयर इज नो अक्यूमुलेटेड लॉस। Okay, now let us go to the next one. बोलो, after this what is our next step? Reserves distribute करना है, बट वो तो है नहीं। accumulated loss write off करना है, वो भी नहीं है। तो बोलो अब next क्या करते हैं हम लोग? revaluation। A particular B, C और D, ये तीनों में से which one is for revaluation? C। फिक्सचर्स आर टू बी वैल्यूड एट 39,800। चेक करके बताओ बैलेंस शीट में फिक्सचर्स का वैल्यू कितना दिख रहा है? 30,000। 30,000 का 39,800 वो लोग कर रहे हैं। सो बोलो 9,800 का क्या है? प्रॉफिट। बोलो विच अकाउंट, विच साइड? एक्चुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट इफ यू रिमेंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच अकाउंट? तो वही अकाउंट हमने बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो यहां तक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमने बनाया ना, फ्रॉम हियर to here, this was profit and loss adjustment account का part 1। तो part 1 हो चुका है। अब इसी अकाउंट में हम आगे कर रहे हैं। यू कैन लीव वन लाइन एंड देन यू कैन राइट डाउन बाय फिक्सचर्स। $9,800। गो टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखो फिक्सचर्स फर्स्ट लाइन 39,800। Okay, let us proceed. Next, they have asked us to create provision of 2% for doubtful debts. बोलो, provision of 2% to be created on which asset? Sundry debtors. So sundry debtors 90,000 है, उसका 2% कितना होता है? 1,800। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विच साइड?
डेबिट साइड, सो लिखो 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन बताओ, 2% इंटू 90,000. Okay, now while writing in balance sheet, be careful. They have to slightly modify the presentation. कैसे presentation करना है? For that you come to balance sheet. Balance sheet में लिखो sundry debtors. Compulsorily sundry debtors, inner column 90,000. Next line less. Provision for doubtful debts. Okay, but आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1800 इनर कॉलम में यू विल नॉट राइट. अब यहां पे लिखो ब्रैकेट में 1800. डोंट सबट्रैक्ट इन द इनर कॉलम. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इनर कॉलम नहीं लिखना है, यहीं पर ब्रैकेट में लिखो 1800. ओके, नाउ इफ यू रीड पॉइंट नंबर बी, देयर इज नो अदर रिवैल्यूएशन. सो आप एक काम करो, एसेट साइड पे नेक्स्ट लाइन में यू कैन कंटिन्यू राइटिंग स्टॉक. ओके, चेक एंड टेल मी स्टॉक का फिगर कितना है? 1,70,000. एंड कम टू लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड में सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट लाइन में आप लिख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स. जस्ट वेरीफाई, इज इट 40,000? ओके, नाउ कम टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में यू कैन सी क्रेडिट साइड इज 9,800, डेबिट साइड 1,800. सो यू कैन सी देयर इज अ प्रॉफिट. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? व्हाट इज द रेशियो इन विच यू विल डिस्ट्रीब्यूट? 2:3:1. करेक्ट. 2:3:1. बोलो, 2:3:1 में अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे. प्रॉफिट इज 8,000. 9,800 इज टोटल ऑफ बोथ द साइड्स. 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो. बी के सामने आएगा 4,000. ए के सामने कितना आएगा? इज इट 2,667? ओके, गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस. एडजस्टमेंट अकाउंट 2,667, 4,000 एंड 1,000. ये अमाउंट्स बरोबर है, प्लीज वेरीफाई करो. ओके, नाउ नेक्स्ट आई थिंक आइडियली वी शुड डू गुडविल एडजस्टमेंट. तो उसके लिए पहले गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल दिया नहीं है. अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसके लिए उधर जगह नहीं है. तो नोटबुक में जाओ, तुम्हारे नोटबुक में प्रॉपरली लिखो कौन से क्वेश्चन का वर्किंग कर रहे हो आप लोग. उसमें लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. उसमें लिखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. ओके, चलो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर हमारा हो चुका है, जो आप लोग अच्छे से भूल चुके हो नहीं? तो बोलो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करने का? देखा, बोला ना मैं, आप भूल चुके हो, फिर भी नहीं बोल के अपना ही तुम लोग वो कर रहे हो। एफएमपी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करने का? ऐसा है ना, हम लोग ने इसी जन्म में किया हुआ है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में आपको जो प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, वो प्रॉफिट्स में सबसे पहले आपको अगर कोई एरर्स हैं तो उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसको रेक्टिफाई करने के बाद वी हैव टू डू दिस 4 एडजस्टमेंट्स। ऐसा हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में किया हुआ है। डू यू एग्री विद दिस? चलो, नाउ कैन यू टेल मी, दे हैव गिवन यू प्रॉफिट्स फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स का प्रॉफिट्स आपको दिया हुआ है। 5 इयर्स के प्रॉफिट्स में सबसे पहले आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2018 15,000, 31 मार्च 2019 23,000, 31 मार्च 2020 25,000, 31 मार्च 2021 35,000, 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 42,000। क्या ये 42,000 वो ऊपर वाला 42,000 है? Yes, because that is profit for the year ended 31st March 2022. That is this 42,000. यही 42,000 है जो ऊपर दिया हुआ है। बोलो, can we directly take average of this 5 years profits? Why no? लास्ट ईयर के प्रॉफिट में तुमको मिस्टेक लग रहा है। क्या मिस्टेक है लास्ट ईयर के प्रॉफिट में? ये 42,000 का प्रॉफिट सही है कि गलत है? गलत है। तो ये 42,000 के प्रॉफिट में आपको क्या करना चाहिए? 6,000 माइनस करना चाहिए। 6,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 36,000। एवरीबडी एग्रीज? श्योर? तो अगर आप 6,000 माइनस करोगे तो आपको 6,000 फिर से ऐड भी करना पड़ेगा, बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 1। व्हाट इज एडजस्टमेंट नंबर 1? रे पढ़ो ना जोर से, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द नॉट एक्सपेक्टेड इन द। इसका मतलब आप जो बोनस दे रहे हो बी को, ये बी को जो बोनस दिया गया है, इज दिस बोनस ओनली फॉर 1 ईयर के एवरी ईयर तुम बी को बोनस देने वाले हो? कैसे पता चला कि इट इज ओनली फॉर 1 ईयर? उससे तुझे पता चलता है कि इट इज फॉर 1 ईयर। देखो, अगर वो एक ही साल का है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो आप सिर्फ उसको यही साल देने वाले हो ना, तो ही वो एडजस्टमेंट नंबर 1 में आ सकता है। अगर आप बी को आगे भी बोनस देने वाले हो ना, तो आप 1 में नहीं लिख सकते हो उसको। व्हाट इज 1? एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द बट नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। मतलब बी को हमने एक ही साल बोनस दिया, अगर फ्यूचर में भी देने वाले हो तो आप जो बोल रहे हो वो सही है कि 6,000 माइनस करो। लेकिन अगर आप बी को फ्यूचर में 6,000 नहीं देने वाले हो और उसको आपने सिर्फ एक ही साल में दिया है, तो आप इधर आके उसको वापस ऐड करोगे। तो कैसे पता चलेगा कि ये 6,000 का बोनस बी को फ्यूचर में मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है, इसने आधा ही पढ़ा, इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। आगे पढ़ो, विच हैड डिवॉल्व्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब वो जो उसने एक्स्ट्रा काम किया है वो सिर्फ इस साल में किया है कि वो हर साल करने वाला है? इस साल में किया है। तो अगर आप बोलते हो कि सर 6,000 रुपीज माइनस करो बिकॉज इट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो मैं आपको ये बोलता हूं, तो फिर आपको नीचे ऐड भी करना पड़ेगा 6,000। तुमको ये सब समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, 6,000 माइनस करना है, बाद में उसको वापस ऐड करना है, उससे अच्छा कुछ करो ही मत। मतलब एज इट इज हम 42 ही लेंगे। तो अब आप फाइनली बताओ 42 लेना है कि 36 लेना? 42 लेना। क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका एवरेज निकालोगे तो कौन सा एवरेज करना है? क्यों? क्वेश्चन में क्लियरली बोला है दे वांट विच एवरेज। सो राइट डाउन, लिखो, इट इज गिवन कॉमा simple average profits. It is given simple average profits of 5 years
it is given simple average profits of 5 years, comma, hence simple average method is followed. Simple average profits equal to simple average profit equal to, चलो सेम लाइन में लिखो, 15,000 प्लस 23,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 प्लस बोलो 42 के 36, 42,000 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, चेक करो, इज इट 28,000? एवरेज प्रॉफिट 28,000 है। ओके, एक लाइन छोड़ के लिखो, यहां पे देखो हम लोग ने पॉइंट नंबर 1 लिखा है, इसी में आगे लिखो स्टेप 2 गुडविल, सॉरी इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन, सिंस देयर आर नो नोन चेंजेस इन फ्यूचर FMP equal to average profit of 5 years. क्या हुआ? मतलब नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं है वो लोग। FMP is equal to average profit for average profit for 5 years, same line equal to rupees 28,000. उसके बाद लिखो नंबर 2, goodwill is equal to FMP into number of years of purchase. $28,000. I think number of years of purchase is 2 is equal to 56,000. चलो उसी के नीचे I wanted to pass entry for goodwill. बोलो it is which partner's capital account debit to which partner? Gaining partner to sacrificing partner. Who is gaining partner here? B and C is capital account debit. B is capital account debit. C is capital account debit. To A is capital account. Goodwill amount is 56,000, which we have just now found out. Total goodwill of the firm is 56,000. 56,000 में B का gain is 3/12. C का gain is also, rather C is also gaining 1/12. I think C के केस में डेसिमल्स में आएगा, यहाँ पे कितना है 14,000. B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000. C's कैपिटल अकाउंट कितना रहा है 4,667 and this is 18,667. Okay, now we will do posting of this. B एंड C's कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाओ. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो 2 A's कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट, B
एंड सी के कॉलम में 14,000 एंड 4,667 क्रेडिट साइड पे आएगा बाय, बाय 20 कैपिटल अकाउंट, यस, एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट. और ए के कॉलम में आएगा 14,000 एंड 4,667. चलो, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया. नाउ हु इज रिटायरिंग पार्टनर? ए. जस्ट कैलकुलेटर उठाओ. पहले आप कैलकुलेटर पे मुझे ए का कैपिटल अकाउंट का ये क्रेडिट साइड का टोटल करके दो. जस्ट डू इट ऑन कैलकुलेटर. 1,62,330 कितना? 162,334. अब इसके बारे में क्या दिया है देखो क्वेश्चन में. रीड पॉइंट नंबर डी. क्या लिखा है पॉइंट नंबर डी में? अमाउंट पेएबल टू ए शैल बी पेड बाय बी. तो क्या एंट्री फर्म पास करेगा? अरे हम लोग फर्म में क्या एंट्री पास करेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट. सो एस कैपिटल अकाउंट में लिखो डेबिट साइड टू बीस कैपिटल अकाउंट. कितना आया था तुमको? 162 एंड यहां पे आएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट बी के कॉलम में 162,334. ओके, नाउ व्हाट वी डू इज इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन हम टोटल करेंगे. एंड ए का तो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है. ए हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. ए का दोनों साइड का टोटल इज 162,334. बट बी एंड सी में तुमको बैलेंस मिलेगा. दिस बैलेंस विल नॉट गो इन बैलेंस शीट, बट फिर भी हम बैलेंस कर रहे हैं. Is it 276,334? 276,334 में से 14,000 माइनस करो. You should get 262,334. $50,333. 45,666. इसको यहीं पे ब्रॉट डाउन करो. चलो, नाउ व्हाट वी डू इज, ये हो गया तुम्हारा स्टेज या स्टेप नंबर 2. देखो आप, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भी 2 स्टेज हुआ है. एंड यहां पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल को भी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग 2 स्टेज तक मैंने बनाया है. दिस वॉज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, एंड नाउ आई गो फॉर स्टेज नंबर 3. फॉर स्टेज नंबर 3 वी विल रीड दोस 4 लाइन्स. ये स्टेज नंबर 3 में हम लोग ने ए को रिटायर कर दिया है. नाउ इसके आगे जो हो रहा है वो बी एंड सी ने जो एग्री किया है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो बी एंड सी हैव एग्रीड दैट दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:1, एंड दे हैव डिसाइडेड to retain the fixtures in the books at the revised value.
सो फिक्सचर्स को हम लोग ने ऑलरेडी रिवाइज किया था. फिक्सचर्स का बुक वैल्यू वाज 30,000, उसको हम लोग ने रिवाइज किया था टू 39,800 और बी ने और सी ने म्यूचुअली एग्री किया है कि फिक्सचर्स को हम 39,800 पे ही रहने देंगे. बट वो लोग बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमें क्या करना है, 6%. ऑलरेडी जब ए रिटायर हो रहा था तब हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना क्रिएट किया था, 2%. बट दे आर सेइंग नाउ वी वांट टू इंक्रीज इट टू 6%. मतलब वी हैव टू इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट, 4%. तो एक्स्ट्रा 4% का एंट्री पास करना पड़ेगा हमको. बोलो व्हाट इज द एंट्री यू विल पास फॉर दिस एक्स्ट्रा और एडिशनल 4%? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. करेक्ट. 2 provision for doubtful debts, it will be 4% ऑफ. कोई बताएगा 4% किसका करोगे आप? 90,000. आई होप यू अंडरस्टैंड 4% क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि वो लोग को 6% चाहिए. 2% ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हो, एडिशनल 4% अभी आपको क्रिएट करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा 4% इज इट 3,600. अब जाओ बैलेंस शीट में. डू यू रिमेंबर हम लोग ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसे 1,800 ब्रैकेट में लिख के रखा है, इसमें प्लस 3,600. सो यहां पे 90,000 माइनस 5,400. चलो आउटर कॉलम में लेके जाओ. बोलो कितना आता है? 80,000, 84,600. देर इज नो फर्दर एडजस्टमेंट. तो अब हम फिर से क्लोज करेंगे. दिस टाइम 3,600 का लॉस है. दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओनली विच पार्टनर? न्यू पार्टनर कहां से आया? अरे पार्टनर का नाम लो ना तुम लोग. बी एंड सी. न्यू ओल्ड मत करो. बाय पार्टनर्स कैपिटल. बोलो व्हाट इज द रेशियो जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 3:1. जस्ट चेक, इज इट 2,700 and 900? This will go to partners capital account, debit side. To profit and loss. Sorry. 2,700, 900. अब इतना काफी नहीं था तो उनको अपने कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट भी करने हैं. उनको चाहिए कि उनके कैपिटल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए. टोटल कैपिटल शुड बी 3 लाख. टोटल कैपिटल शुड बी 3 लाख एंड इट शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो जाओ पार्टनर्स कैपिटल में. पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे कंपल्सरली लीव 2 लाइन्स एंड देन राइट डाउन 2 बैलेंस कैरी डाउन. इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स. चलो 3 lakhs को डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन 2:1. बताओ बी का कैपिटल शुड बी करेक्ट 2,25,000. ओके. और इसमें जो डिफरेंस है ये लोग किस में सेटल करेंगे? कैश में. सो आई थिंक सो एक पार्टनर का एक्सेस कैपिटल आएगा और एक का डेफिसिट आएगा. आई थिंक बी का कैपिटल इज एक्सेस. जस्ट चेक. एक काम करो, बिफोर यू डू दैट पहले पार्टनर्स कैपिटल को लेके जाओ बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखो पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल में लिखो बी 2,25,000 एंड सी में लिखो 75,000.
सॉरी 3 लाख। चलो डिफरेंस कैश में सेटल होगा। सो पहले मुझे बताओ बी में विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड, दैट इज 262 334 262 334, उसमें से you subtract, so you get 2 cash and bank account, excess capital। बोलो बी का कैपिटल कितना एक्सेस है? कितना था? 34 634। यहाँ पे आया 2 कैश और बैंक। सो गो टू कैश और बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बीस कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बीस कैपिटल अकाउंट 34 634। डेफिसिट कैपिटल, आई थिंक सी का डेफिसिट कैपिटल आएगा 75 900 में से 45 666 माइनस करें कितना है? 30,000 30234। ओके, नीचे इनफैक्ट कैश और बैंक ऊपर बनाया हम लोग ने। सो यहाँ पे आएगा कैश और बैंक में डेबिट साइड 2 सीज कैपिटल अकाउंट 30,234। कैश एंड बैंक क्लोज करो, चेक करो कैश एंड बैंक में आर यू गेटिंग 45 600, उसको बैलेंस शीट में लेके जाओ। कैश एंड बैंक सिर्फ कैश है, ओके तो यहाँ पे भी रॉन्ग है फिर। सो टू कैश अकाउंट आएगा सिर्फ, टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट। डोंट राइट कैश एंड बैंक। $45,600। See whether balance sheet tallies। Okay, now just summary जो ये सम का है, what is new point in this question। ऐसा हम लोग आगे भी जाके और 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। This entire question was divided into 3 parts। पहले it was before retirement, then it was at the time of retirement and after retirement। तो सबसे पहले आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर एरर्स हैं तो वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग स्टेप्स ऑफ वेदर इट इज एडमिशन, वेदर इट इज रिटायरमेंट, वेदर इट इज डेथ और वेदर इट इज डिसोल्यूशन। उसके बाद आप जो भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन का स्टेप्स है वो फॉलो करो। वो करने के बाद अगर आपको आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर डिसोल्यूशन में तो आफ्टर नहीं होगा, आफ्टर एडमिशन, आफ्टर रिटायरमेंट के स्टेप्स दिए हैं तो वो आप फॉलो करो। सो दिस इज न्यू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके होमवर्क बुक में, कम टू होमवर्क बुक। आई नो रिटायरमेंट तुम लोग बाद में करने वाले हो, लेकिन ये क्वेश्चन तो तुम आज ही करोगे, आज ही करना पड़ेगा। दिस सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिमिलर। होमवर्क बुक का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 137, इट इज नॉट सेम क्वेश्चन, इट इज सिमिलर क्वेश्चन। अगर आप चेक करोगे ना तो ये क्वेश्चन में बोला था अमाउंट ड्यू टू ए शैल बी पेड बाय बी, ये पॉइंट ये क्वेश्चन में नहीं है। तो कैन यू टेल मी वॉट एवर इज अमाउंट पेड टू ए विल बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। तो वो एक पॉइंट है जो आप लोग को ये पॉइंट में या ये क्वेश्चन में आएगा। वन मोर पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट इन दिस क्वेश्चन, ये लोग ने गुडविल के बारे में बहुत बड़ा डायलॉग लिखा है। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग, लेकिन प्रीसीडिंग 5 years का आपको प्रॉफिट ही नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? बिकॉज वो लोग ने गुडविल ऑलरेडी वैल्यू करके दिया है। तो ये जो पैराग्राफ लिखा है या ये जो लाइन लिखा है वो यूजलेस है।
ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि गुडविल का आपको ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है। नाउ आई थिंक मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, तो इसको एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे हमने सॉल्व किया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये क्वेश्चन आप आज ही सॉल्व करोगे घर पे जाके 1 घंटा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये क्लासरूम 6 बजे के बाद खाली है, तुम इधर ही बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में पीछे बिटवा के इधर करवाएगा। ओके, नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में हो जाएगा। I am reading question number 5. On 1st Jan 2021, that is retirement date, retiring partner C's loan is standing in the books at 30,000 and it is to be paid in 4 equal annual installments on 31st December every year. This loan is to carry interest of 6% per annum. Prepare C's loan account till it is fully paid off. तो चलो एक सीज लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, एसेट टेबल सॉरी लेजर अकाउंट बनाओ, चलो बी फास्ट। फुल पेज का लगेगा या 3/4 पेज का तो लगेगा ही, उधर आपका बैठ जाएगा वो पेज पे उतने में। चलो राइट डाउन, फर्स्ट ईयर इज 2021, तो आप काम करो दोनों साइड डेट डाल दो, इनफैक्ट ईयर, बोथ द साइड्स राइट डाउन 2021। ओके, सी हैज रिटायर्ड ऑन विच डेट? 1st Jan। तो सी के लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया होगा हम लोग ने? Retiring partner C's loan is standing in the books at 30,000. So just think and answer कि ये 30,000 C के लोन में 1st जनवरी को हमने कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया? करेक्ट, सीज कैपिटल अकाउंट से सीज लोन में ट्रांसफर किया रहेगा। तो क्या एंट्री पास किया रहेगा Jan 1 को? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। यहां पे आओ, क्रेडिट साइड पे Jan 1 बाय सीज कैपिटल अकाउंट 30,000। सी हम लोग ने सी के लोन अकाउंट में अमाउंट कब ट्रांसफर किया? ऑन 1st Jan 2021। नाउ ये लोग बोल रहे हैं कि सी का लोन वी विल पे इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड दिस इंस्टॉलमेंट विल स्टार्ट ऑन 31st March एवरी ईयर। तो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब ये 30,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4। सो 4 से डिवाइड करो, एवरी ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है? 7,500। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ओके, कैन यू टेल मी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन से डेट को आएगा? 31st December 2021, दैट इज आफ्टर 12 months। डू यू एग्री विद दिस? लेकिन हम लोग को ये साल का उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। तो कैन यू टेल मी 6% आप किस पे कैलकुलेट करोगे? अरे पूरे 30,000 पे इंटरेस्ट आएगा ना, फर्स्ट ईयर में पूरे 30,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। चलो कैलकुलेट करके बताओ, 6% ऑफ 30,000 इंटू 12/12, बोलो कितना आता है? 1800। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू? ड्यू मतलब पेएबल। व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट पेएबल? इंटरेस्ट इज व्हाट फॉर द फर्म? एक्सपेंस। एंट्री बोलो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। चलो वेरी गुड, टू सीज लोन। तो राइट डाउन December 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1800। नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट बनाओ, 6% इंटू 30,000 इंटू 12/12। ओके, कैन यू टेल मी पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आएगा? अभी
पहले आप बोलो सी का लोन पे करने का एंट्री क्या आएगा, मतलब सी को पैसा देने का, मतलब सी लोन का पैसा देने का क्या आएगा बोलो। सी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट December 31। ओके, कैन यू टेल मी हम कितना पैसा दे रहे हैं सी को, हाउ मच प्लस हाउ मच। एक तो उसका 7,500, आई होप यू एग्री, 7,500 इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1,800 इंटरेस्ट, बोलो कितना आएगा, 9,300। So close this account, to balance carried down, चेक करो बैलेंस कितना है, चलो चलो जल्दी बोलो। 2022 Jan 1 by balance brought down 22,500। अब ना इंटरेस्ट का एंट्री में चेंज नहीं है, और मुझे कैलकुलेशन बोलो 2022 में इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन विच डेट, सॉरी विच अमाउंट, यस सेकेंड ईयर में इट विल बी ऑन 22,500। 6% इंटू 22,500 इंटू 12/12, बोलो कितना आता है, 1350। चलो इंस्टॉलमेंट पे करने का एंट्री बोलो, इंस्टॉलमेंट पे का एंट्री सेम आएगा टू बैंक अकाउंट, 7,500 तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा 1350, कितना होता है ये 9888। चलो फाइंड क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन Jan 1 by balance brought down। ओके, कैन यू टेल मी ये साल में इंटरेस्ट विल बी ऑन हाउ मच, इंटरेस्ट किस पे करोगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कैलकुलेट करो 6% ऑफ 15,000, by interest account, is it 900? To बैंक अकाउंट, तो बोलो नेक्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट विल बी 7,500 प्लस 900, दैट इज 8,400। तो 2023 में क्लोजिंग बैलेंस आएगा 7,500, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट है। लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कितने पे आएगा 7,500 पे, दैट विल बी 450, एंड वो पूरा अमाउंट पे हो जाएगा, सीज लोन अकाउंट टैली हो जाएगा 24 में, 2024 में। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 2024 का 450, ओपनिंग बैलेंस 7,500 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 450 एंड टू बैंक अकाउंट 7950, तो लास्ट ईयर में सीज लोन अकाउंट टैली हो गया 7950। क्वेश्चन 3 इज कंपल्सरी होमवर्क का, ये आज ही करोगे आप, सो दैट वो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, चलो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।